Assalamu alaikum students. I welcome you to the lecture number 25th of Decision Making in Non-Profit Sector. As far as today's agenda is concerned, we will be having a preview of the last lecture. Then we are not going to understand that what is leading the team, what is leadership, how leadership prevails in non-profit sector world, what are types of leaders, what is the difference between managers and leaders, what are the common activities between both of the entities, either it's manager or either it's leader. Then what are the leadership traits? Following up with the management styles which leader has to follow. New leaders take notes. We are going to talk about it, what sort of notes they take. New leader traps. What are the traps for a new leader in non-profit sector world? What they have to do. Then core tasks. Creating momentum, master technologies, enabling technologies, managing oneself, confidence on leader. We are going to have a picture on it, what sort of confidence one leader has, and what sort of confidence one team has on leader. Effective negotiation skills. What is negotiation? How you're going to cover the contents of negotiation, whether how you're going to come up with a negotiation process when there is a conflict, when there is a situation which is distress, when there is a situation which is hostile, what sort of negotiation skills a leader has to follow in order to decide the fate about various policies, in order to implement those all policies. Then model of negotiation, we are going to have a model, then skills of leaders when doing negotiation, along with the references at the end. First and foremost important thing in order to decide about the fate of the policy implementation, along with the policy, first for policy formulation and followed by policy implementation. It is leading the team. We have discussed thoroughly about teams, we have discussed thoroughly about groups, we have discussed about informal groups in an organization, then we discussed about policies governing in an organization. In last lecture we studied about various policies with reference to Sustainable Development Policy Institute, with reference to Pakistan Center of Philanthropy, and we found out various examples of policy implementation. But if there is no leader in non-profit sector world, then how can one efficiently or effectively manage the tasks or manage the activities or manage outputs or outcomes at the large level, ultimate objective of the non-profit sector? How one organization can achieve that? With managers or with leaders, we require leaders. We don't require bosses, but we require those leaders in non-profit sector world who can lead the team, who can even though lead the bosses themselves. So leading the team is a very much essential element, and leading the formal team is an essential element. So there is a difference between leader and a team? So we are going to have a look on what skills a leader should possess in order to direct a team, in order to coach a team, in order to motivate a team, in order to inspire or aspire a team. So there is a dedication factor, there is a commitment factor, there is an intellect factor. So how these all factors one personality possess, which is known as leader. So leader is leading the team is important function. It is the important organ in order to decide the fate about the policy implementation in non-profit sector world. We almost in our daily lives we witness sort of problems which we can't even though understand how to solve them. But at the end there is a skill, negotiation skill, and we are going to study about what negotiation skills we require in order to lead our team. What is leadership? Then we have got various examples. Mother Teresa is in it. Then Mahatma Gandhi is in it. So we have got other examples too. We have Abdul Sattar Eidi. We have discussed about Dr. Abdul Sattar Eidi. Then we have discussed about Princess Diana.
Then we have discussed about Nelson Mandela. Then there are rest of personalities which are existing in our non-profit sector world, and they are very well-known leaders. There are certain leaders who are good in peacetime, but they are not good in the wartime. So Winston Churchill ki example li jaye, to he was good in a wartime, but he was not good in a peacetime. So there are so many other examples to it. कि लीडरशिप के अंदर जो प्रिवेल करती हैं एग्जांपल्स वो किस तरह की हैं और उनको हम आए दिन देखते रहते हैं. So what is leadership? Question arises. First and foremost important thing, one who leads team, one who lead his or her people in an organization, in a set of community, in a set of if he or she is running a trust. Leader can exist not only on the top management level, it can exist on the also on the first line management level. So ये जरूरी नहीं है कि लीडर जो है अगर बंदे मैनेज करेगा या पीपल मैनेज करेगा तो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे हो, वो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट पे भी फॉलो अप कर सकता है, वो वहां पे भी एक एज अ लीडर के तौर पे सामने आ सकता है. तो फर्स्ट थिंग इज लीडिंग पीपल फॉलोड बाय इन्फ्लुएंसिंग पीपल. Positive influencing, charismatic influence, healthy and optimistic influence, motivational influence. So this is which is the aspect of our leader. One who listen to the people, who lead people. Then the second characteristic is who can influence people, who can motivate, who can inspire, who can act as a role model in one particular aspect, in one particular setup. We studied a lot of material regarding the decision making in non-profit sector world, but we haven't focused more on leadership and negotiation skill, which is the utmost requirement in order to decide about the fate of particular problem in an organization which is non-profit sector organization, or in an NGO, or in charity, or in trust, or in the Waqf, any other non-profit sector company even though. So leading people is the most important thing, and second, a leader should influence the people. So influence can be done with the help of the skills, with the help of the expertise, with the help of aptitude, positive attitude, and competencies possessed by a leader. So first thing, leading people, then influence people. Third, commanding people. It is very important to have a governance on people. It is very important to see them whether they are going towards the right direction or wrong direction. It is very important to see the people whether they are reaching their goals or objectives or not. So it is important for the manager or leader who is sitting in an organization it's an objective that he has or she has to command the people. And we can have an example of over here. One leader who was Italian, and his example is over here, followed by guiding people. It's important that one who are leading people, who are influencing their personalities on people, who are commanding people, at the end they need to guide, coach and mentor. Mentor कहते हैं गुरु को. कोच होता है, टीम का कोच होता है, लेकिन ज्यादातर कोच आपने देखे, अगर किसी भी टीम की भी एग्जांपल ली जाए तो उसमें कोच मेंटोर का किरदार कम अदा करता है. सो अ कोच इज आल्सो अ मेंटोर और अ गाइडर, और ऐसा बंदा जो कि उनसे काम निकलवा सके और उनको गाइड कर सके मुश्किलात के वक्त कि किस तरीके से एक नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप प्रिवेल करती है. So there are various characteristics, other characteristics we are going to study about them, but right now we are focusing on four important characteristics. One is the leading people, then is influencing people, then is commanding people, and fourth one is the guiding people. So we have got four major characteristics. One, leader is the one who lead people. Number two, who can influence people. Number three, who can command people. And number four is guiding people. The guidance of, with the help of coaching, with the help of mentoring, with the help of training and development, with the help of finding out that this person in non-profit sector organization requires training of that caliber or that sort or that technicalities, and he or she should be given that training by the leader, or he or she should be act as a coach. Leader has to act as a coach towards the people of the organization, whether it's a non-profit sector organization, either it's a profit sector organization, but in majorly non-profit sector organization, people are the most important component of an organization. So a leader has to inspire, leader has to motivate, leader doesn't act as a cold fish. He has to be warm.
ऐसा नहीं है कि लीडर वो जाए और वो डायरेक्टली जो है एक गलत एप्टीट्यूड, गलत एथिक्स के साथ वो काम निकलवाने की कोशिश करे. लीडर हैज टू एक्ट एज एन आइडियल, एज अ रोल मॉडल. So we have various types of leader by the position achieved. It's very important to understand that we have got various examples of leaders. Now, what sort of leaders, what types of leaders? First one, leaders by the position achieved. There is a position in an organization, in a non-professional sector organization, and leader went to that position, and there is an employee, he or she is now acting as a leader by the position he or she has achieved. So second is leader by personality. Charismatic personality. ऐसे बहुत से लीडर्स गुजरे दुनिया में जो charismatic personalities रखते थे, और वो charismatic personalities की वजह से नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में और वैसे नॉन प्रॉफिट सेक्टर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं. देन लीडर बाय मॉरल एग्जांपल. We have Abdul Sattaridi, and his example as far as moral is concerned, as far as ethics is concerned, that is one of its kind. It is exceptional example. So we have got various other examples. Mother Teresa, she was having good moral, she was having good ethics. Talk about Princess Diana, she was also ethical. So leader by position first, leader by personality and charisma, leader by moral example is the third type of leader. And followed by fourth and important, leader by power held. We have witnessed various dictators coming to the land as a ruler and acting as a ruler in our country and we rest of the countries. So they just capture a power and they start acting as a leader. So there is a fourth type of a leader, which is by power, by moral, by personality, and by position. Then there is an example which is intellectual leader. One who has got intellect, one who जो मेहनती हो, जो के लायक हो, जो के intellect रखे, जो के dedicated हो. So we have got multiple types of leader, and then leader because of the ability to accomplish things. There are various examples of leaders who have got the ability to accomplish lots and lots of things. These were the types of leader. Now we are on the managers versus leader, and we are going to follow what aspects, what characteristics one manager possess and what characteristics on the other end one leader possess. Managers, they focus on things, do things right, they plan, they do lots of planning. First and foremost important thing is they focus on things, on commodities. Second, do things right. Number three, they plan. And majorly we have witnessed that in organizations there are various plans and projects are run with the help of project management plan, and organization operations are run on the basis of standard operating procedures. So all those procedures, all those plans, they follow those plans, they made those plans, and at the end they implement those plans. Now first thing is focus on things. Second is do things right. Third is plan. They always plan. And then they organize. Then they direct the task to the people that you guys have to do, you guys have to achieve these objectives. ये objectives आपकी टीम ने achieve करने, ये काम डायरेक्ट कर देना, उनको सौंप देना, उनको ये autonomy देना कि भाई वो इस काम को अंजाम दे सकें. That is direction of task. पहली चीज प्लान करना, दूसरी चीज ऑर्गेनाइज करना. ये जी 4 functions of management हैं. Plan, organize, lead and control. और इसके साथ 5 ही बन जाते, कमांड भी हो सकती है. एंड इसके क्योंकि वो लीडर के अंदर ही फॉल करती है, तो प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल, देयर 4 मेजर फंक्शंस. सो प्लान इज देयर, ऑर्गेनाइज इज देयर, दे नीड टू ऑर्गेनाइज द वर्क, हु इज गोइंग टू परफॉर्म विच टास्क, एंड देन दे डायरेक्ट दोस टास्क टू दोस पीपल. एंड एट द एंड इज कंट्रोल. इफ यू कांट मॉनिटर, यू कांट कंट्रोल. सो मैनेजर्स की एक खसूसियत ये भी है कि दे स्टार्ट डूइंग कंट्रोल. Then they follow the rules, they follow the criteria, they follow black and white. So these are the important characteristics of one manager. They focus on things, they always do things right, they plan, they organize, they direct, they control, and at the end they follow the rules. If you talk about leaders focus on people, humanistic values,
inspiration, motivational aspects. Leaders do the things, do the right things. They always inspire people. They always influence people with the help of their personality, with the help of position they held, with the help of power they held, with the help of moral ethics they held. They motivate people. They see their sociological needs, they see their security, they see their safety, they see their food, cover and shelter basic needs, and at the end they decide about the fate of particular problem. So we have got various characteristics of one managers, and equally we have got characteristics of one leaders. And in one leader or leaders, there are characteristics like focus on people. They always focus on people. They say people are our first and foremost priority because they do all the work. And second, they always do the things right. Then is inspire people. They always inspire people. They always motivate people. Then they influence people with the help of their personality, with the help of wisdom they have, with the help of courage or determination they have with the help of competencies they have, with the help of ability or positional leadership they have, with the help of morals they have. And then it's motivational aspect. They always motivate. कोई बात नहीं, next time इससे बेहतर करो. Marginalized community से जाके इस तरह बात करनी है, पहले उनको बताना, and then observe them whether they are doing according to what a leader has taught them, and then mentoring them. कोई गलती होगी है तो उनकी गलती पे उनको सजा नहीं, उनको mentor किया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरीके से आप बेहतरी ला सकते हैं अपने काम के अंदर, किस तरीके से आप positiveness ला सकते हैं, किस तरीके से आप ज्यादा efficient और effective हो सकते हैं. तो motivational aspect is there, and then build. It's all about environmental building. So leaders possess lots and lots of traits, but there is a difference between managers and leaders. They share entities. They share, even though their own office. There are certain common activities. Common activities between managers and leaders. Managers and leaders both plan. Managers and leaders both organize and direct, and managers and leaders both control. So what is planning? As far as managers planning is concerned, managers plan overall the organization of the processes, the procedures, the operations and projects and programs, and equally they devise estimates, budgets, they design the estimates, and then they apply estimates on duration, which is budgeting, and then they set targets, and then establish detailed steps that how you're going to achieve your motives or objectives or tasks. Then they allocate resources. So this is what in planning component managers perform. Managers plan, they budget, they estimate, and they do budgeting. Then they set targets. Then they establish detailed steps. Then they allocate resources. As far as leader is concerned, leader follows the strategy. First and foremost important thing is achieving the strategy, whether the people are helping to achieve the strategy or not, because people are the most important component. And leader जो है वो ज़्यादा focus होता है people पे, ये humanistic values पे focus होता है. जैसे मैंने कहा motivational पे focus होता है, inspiration पे focus होता है. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहली important जो चीज़ है planning के अंदर, leader plan कर रहा है strategy के बारे में. Leaders plan कर रहे हैं कि how to set the right direction. Then they create a vision, a guiding philosophy और intangible image, जिसके बारे में मैंने सेकंड या थर्ड लेक्चर में जिक्र किया कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर मैंने ये विजन बना दिया कि जी 2040 तक जाके मैं 40 कार्डियक हॉस्पिटल बना दूंगा. अब 40 कार्डियक हॉस्पिटल बनाने के लिए मुझे पहले स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी. अब स्ट्रेटेजी पहले विजन दे दिया, अब विजन के बाद मैंने स्ट्रेटेजी बनानी है. स्ट्रेटेजी की मुझे फेजेस बनाने और फेजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे बजट चाहिए. आई रिक्वायर प्रोसीजर्स, आई रिक्वायर प्रोग्राम्स, आई रिक्वायर पोर्टफोलियोज, एंड देन आई नीड टू सेट डायरेक्शन. Whether my projects, whether my programs, whether my all procedures or operations or functions, they are going towards achievement of vision or not. So what is organizing? Manager creates structure,
मैनेजर डिवाइस जॉब डिस्क्रिप्शन क्या कि किस बंदे ने क्या काम करना, उसकी क्या रोल प्रोफाइल होगा, उसकी क्या ड्यूटी होगी, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसके क्या टाइमिंग्स होंगे, उसके क्या आवर्स होंगे, कि कब से लेके कब तक उसने काम करना है, और उसको क्या सैलरी दी जाएगी, उसकी मेजर ड्यूटीज क्या क्या होंगी, और उसकी जो रेस्ट ऑफ ड्यूटीज हैं वो क्या क्या होंगी। जो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कि लाइन मैनेजर के साथ बैठ के, लाइन मैनेजर HR और लाइन मैनेजर बाकी जो डिपार्टमेंट के जहां पे एम्प्लॉय की जरूरत है उसके साथ बैठ के they devise job description. Then is hierarchy. Managers organize about hierarchy. कि ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की क्या होनी चाहिए, किस तरीके से काम को अंजाम देना है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, और चेन ऑफ कमांड क्या होगी। अकॉर्डिंग टू स्टीफन पी रॉबिन्स की किताब से देखा जाए तो साइंटिफिकली एक बंदा 8 बंदों से ज्यादा मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन साइंटिफिकली ये चीज एक जगह पे लिखी हुई है। किसी जगह पे हो सकता है इससे ज्यादा मैनेज हो रहा हो, अच्छा मैनेज हो रहा हो, लेकिन साइंटिफिकली एक बंदा 8 बंदों से ज्यादा मैनेज नहीं कर सकता। सो ऑर्गेनाइजिंग की जहां तक बात है, ऑर्गेनाइजिंग की पहली चीज क्या है, दैट दे ऑर्गेनाइज अबाउट द स्ट्रक्चर्स, अबाउट हायरार्कीज, देन दे डिवाइस अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शंस, देन दे डू स्टाफिंग, देन नंबर 4 दे टॉक अबाउट हायरार्की, नंबर 5 दे डेलीगेट टास्क कि भाई किसने क्या करना है। सो मैनेजर की ऑर्गेनाइजिंग के जो सारी खसूसियात हैं उसमें क्रिएट स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, डिस्क्रिप्शंस की बात हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, स्टाफिंग कैसे की जाएगी। स्टाफिंग के अंदर 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वन इज रिक्रूटमेंट, अदर वन इज सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट इज जस्ट अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द स्पेसिफिक जॉब, और सिलेक्शन इज सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स विद द हेल्प ऑफ शॉर्टलिस्टिंग, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट, विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यूज। Then is what sort of hierarchy, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन लास्ट अथॉरिटी होगी जो कि इस पे डिसीजन लेगी, और देन डेलीगेटिंग द टास्क टू द पीपल, एंड लास्ट इज ट्रेनिंग। मैनेजर्स प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज। टॉक अबाउट लीडर्स। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर गेट पीपल ऑन बोर्ड फॉर स्ट्रेटेजी, सारे लोगों की राय लेना, डेमोक्रेटिक एक तरीके से चलना, कम्युनिकेट करना ओवरऑल टुवर्ड्स ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर एंड टू ईच एंड एवरी एंटिटी, सो दैट टू डिसाइड अबाउट द फेट ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी बात है कि एक लीडर कम्युनिटी, पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं उनको इन्वॉल्व कर रहा है स्ट्रेटेजी की फॉर्मुलेशन में, स्ट्रेटेजी की इंप्लीमेंटेशन में, स्ट्रेटेजी की वैल्यू, इन ऑर्डर टू टेक द फीडबैक, इन ऑर्डर टू डिवाइस के वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टूवर्ड्स और इट्स लीडिंग टूवर्ड्स और इट इज पेनिट्रेटिंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन और नॉट। Number 2, it's communication, whatever the processes are on, उनकी क्या productivity है, but major important thing is communication to the right people। पहले ये जानना बहुत जरूरी है, who are your major stakeholders and how you're going to manage their expectations, और then ये जानना जरूरी है किस तरीके से आप communicate करेंगे, in the form of report communicate करेंगे, in the form of presentations communicate करेंगे, या कोई पेरिटो चार्ट बनाएंगे, या कोई फिशबोन डायग्राम बनाएंगे। तो हम लोग ये आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे ये क्या चीजें, पेरिटो चार्ट क्या है, जो बाकी कम्युनिकेशन के मैकेनिज्म क्या है। लेकिन कम्युनिकेशन को 2 तरीकों से किया जाता है, वन इज ओरल कम्युनिकेशन, अदर वन इज रिटन कम्युनिकेशन। तो लीडर जो है वो दोनों कम्युनिकेशन के मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करता है। देन इज नेटवर्क्स, लीडर्स ऑलवेज गो विद द नेटवर्क्स कि भाई किसकी लिंकेज किसके साथ होनी चाहिए। देन इज डायरेक्टिंग वर्क, प्लान भी देख लिया, ऑर्गेनाइज भी देख लिया, और अब आपने डायरेक्टिंग वर्क की बात कर रहे हैं। अगर आप लीडर की बात देखें और मैनेजर की देखें तो लीडर इज द वन हु एम्पावर्स पीपल। डायरेक्ट करते वक्त लोगों को एम्पावरमेंट दी जाती है कि आगे बढ़ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, एंड लीडर कैन एक्ट एज अ चीयर लीडर। जो जिसने अच्छा काम किया उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना, उसको कहना वेल डन सन, वेल डन बेटा, यू हैव डन अ फैबुलस जॉब, आप इससे बेहतर करके दिखाएं। सो लीडर की है कि एम्पावर्स पीपल है, और चीयर लीडर है कि वेल डन, जो अच्छा काम किया उस पर वेल डन, और जो गलती भी हो गई है तो उस पर सजा ना दो और उसको मेंटोर कर। बट ऑन द अदर एंड मैनेजर की बात की जाए, मैनेजर इज मोर इंटरेस्टेड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, भाई इस मसले का हल किस तरीके से निकाला जाए। देन ही और शी नेगोशिएट्स, देन ब्रिंग्स टू द कंसेंसस। सो आखिर में रिजल्ट पे आते हैं। सो देयर इज डायरेक्टिंग के लिहाज से देखा जाए तो मैनेजर और लीडर में फर्क है। देन इज कंट्रोलिंग। अगर कंट्रोलिंग के अंदर हम देखें तो कंट्रोलिंग के अंदर मैनेजर की जो एट्रीब्यूट्स हैं, दे इंप्लीमेंट कंट्रोल सिस्टम्स कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक का काम है, इतने बजे से इतने बजे तक ही करना है। देन दे डू परफॉर्मेंस मेजर्स। परफॉर्मेंस मेजर्स में मैंने जैसे बताया 360 डिग्री फीडबैक और मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स है। 360 डिग्री फीडबैक में हर बंदा ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मेजरमेंट करेगा एम्प्लॉय की
परफॉर्मेंस की अप्रेजल करेगा, एंड मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स में एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली गोल्स असाइन कर दिए जाते हैं, और फिर एंड में SCRs, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स तैयार की जाती है। मैनेजर का ये काम है, मैनेजर ये परफॉर्म करते हैं। लेकिन लीडर की अगर बात की जाए, दे मोटिवेट, डायरेक्ट कंट्रोलिंग के लिहाज से दे मोटिवेट, दे इंस्पायर एंड गिव सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, कि अगर आप इस काम को कर लेंगे तो आपको क्या अचीवमेंट मिलेगी, क्या अकम्प्लिशमेंट मिलेगी, सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या मिलेगी। देन देयर आर वेरियस लीडरशिप ट्रेट्स। अगर हम लोग देखें तो यहां पे जो मेजर ट्रेट्स लिखे हुए इंटेलिजेंस के लिहाज से, लीडर्स ऑलवेज हैव दिस ट्रेट दैट दे आर मोर इंटेलिजेंट देन नॉन लीडर्स। देन स्कॉलरशिप की बात की जाए, मोस्टली लीडर्स को देखा गया कि दे गो फॉर द स्कॉलरशिप, दे आर मोस्टली उनकी जो लाइफ गुजरती है वो सिर्फ स्कॉलरशिप बेस होती है। नॉलेज उनके पास ज्यादा होता है, और बीइंग एबल टू गेट थिंग्स डन। इंटेलिजेंस के लिहाज से ये चीज, ये 4 एस्पेक्ट्स हैं कि लाइक होते हैं, इंटेलिजेंट देन नॉन लीडर्स होते हैं, दे गॉट नॉलेज, बीइंग एबल टू गेट थिंग्स डन। नॉलेज के लिहाज से मैं ये चीज आपको बताता चलूं कि पूरा इल्म किसी के पास भी नहीं होता। आधा इल्म मैं जानता हूं, आधा इल्म आप जानते हैं। पूरा इल्म किसी भी लीडर के पास नहीं होता। जो भी हैं वो अपने इंटेलेक्ट से, अपने इंटेलिजेंट स्किल से, अपने इंटेलेक्चुअल स्किल से, अपने कॉग्निटिव स्किल से, अपने बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर से दे स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग एंड डायरेक्टिंग पीपल, एंड दे आर वेरियस ट्रेड्स। 17,953 ट्रेड्स मैयर किए गए हैं साइंटिस्ट की तरफ से, उसको कंप्रेस किया 171 में, और उसके बाद उन्होंने उसके अंदर से भी ट्रेड्स कंप्रेस किए कि भाई ये ट्रेड्स मौजूद हैं। तो उसमें इंटेलिजेंस जो है दैट इज नंबर 1 ट्रेड। एंड देन उसके बाद देखा जाए तो फिजिकल डजंट सी टू बी कोरिलेटेड, मतलब कि लीडर्स जो हैं वो कभी किसी के साथ फिजिकल नहीं होते, किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते, वो कभी किसी के साथ इन पर्सनल नहीं होते। देन इज पर्सनालिटी के अंदर वर्बल फैसिलिटी, ऑनेस्टी, इनिशिएटिव, एग्रेसिवनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस, ओरिजिनलिटी, एंड लास्ट इज सोशेबिलिटी। सो पर्सनालिटी के ट्रेट्स अगर देखे जाएं, बंदा एक्सट्रोवर्ट भी होता है, बंदा एग्रेसिव भी होता है, बंदा इमोशनली स्टेबल भी होता है, लेकिन लीडर हैज टू हैव वर्बल फैसिलिटी, ही और शी हैज टू बी ऑनेस्ट, ही और शी हैज टू इनिशिएट द थिंग्स फर्स्ट, एंड देन समटाइम्स दे नीड टू गो एज एन एग्रेसिव अप्रोच बट नॉट हॉस्टाइल अप्रोच। दे नीड टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ इंस्पायर्ड। Then there is ambitious approach which they require because they need to set aims and they need to achieve those aims up. Then originality, जैसा कि अंदर से है वैसे ही बाहर, no hypocrisy whatsoever. So leader has to be original. Now and last but not the least is sociability, that they need to talk to the people, they need to go and उनके गम में, उनकी खुशी में उनके साथ शरीक हों. And then is adaptability. ये सारी चीजें होंगी तो लीडर एक adaptive भी होगा. Then there are various management styles. We have discussed about it. Manager can have autocratic style. They can go with the persuasive style. They can come up with a participative style. Then equally they can come up with a democratic style. Recently, I finished one research, linking big 5 personality traits, conflict management styles on leadership effectiveness of project managers in Pakistan with reference to the development sector and equally commercial sector. और उसमें मैंने ये चीज देखी कि जितने भी जो लीडर इफेक्टिव लीडर हैं वो जो है डेमोक्रेटिक जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है उसको फॉलो करते हैं। और उसमें इसके साथ मैंने मैनेजमेंट स्टाइल्स को भी देखा, तो डेमोक्रेटिक स्टाइल के साथ साथ वो एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल जो है उनका जो मोस्टली होता है वो उसमें कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन होती है इंक्लूडेड, और वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एज फार एज अडॉप्टिंग न्यू प्रोसीजर एंड अचीविंग एम्प्लॉइज लॉयल्टी इज कंसर्न। सो मैनेजर्स अगर मैनेजमेंट के स्टाइल देखे जाए और लीडर के स्टाइल देखे जाए तो मोस्टली कॉमन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेजरली 4 मैनेजमेंट स्टाइल्स का मैं जिक्र करने जा रहा हूं। फर्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिक, टॉप मैनेजमेंट से लेके लास्ट मैनेजमेंट तक, जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है, जो सबसे निचली मैनेजमेंट है, उस तक जो ऊपर से बॉस बोलेगा एंड तक वही बोला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल आपके साथ आर्मी की भी एग्जांपल है, मिनिस्ट्रीज की भी एग्जांपल है, बहुत से अदारे हैं जिसमें ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल फॉलो होता है कि यस सर यस सर यस सर एंड तक वन सेंट्रलाइज कमांड होती है, और उसमें
जो इस स्टाइल की खसूसियत है कि दे मेक ऑल डिसीजंस ऑटोक्रेटिकली, देन दे आर क्विक एंड एफिशिएंट, एंड इट्स ओनली वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि ऊपर टॉप हिरार्की से लेके निचली हिरार्की तक जो है वो जो है कम्युनिकेट किया जाता है, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको निगेट नहीं कर सकता. दे नीड टू फॉलो इट. एम्प्लॉइज नीड टू फॉलो ऑटोक्रेटिक लीडर. एंड देन देयर इज अ परसुएसिव स्टाइल, गोइंग टू वन डेस्टिनेशन, देन गोइंग टू अनदर destination, then finding out that what capacity, what capability we have, and then in persuasive style we have got make all decisions but explains to subordinate that why we are having this decisions, why this is important. Then staff more willing. If staff is willing, then persuasive style is much better. Then subordinates not committed to decisions. इसके अंदर ये चीज भी देखी गई है कि decisions के बारे में subordinates इतने committed नहीं होते कि ये वाकईतन हुआ है कि नहीं हुआ. And third is participative style, जिसमें आप एम्प्लॉइज को शामिल करते हैं, उनकी राय लेते हैं, उनसे पूछते हैं. इट कन्फर्म्स सबऑर्डिनेट्स. इट रिक्वायर मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल हु आर डाउन टू द लेवल अंडरनीथ द लीडर और अंडरनीथ द मैनेजर. देन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग. पार्टिसिपेशन में ये होता है कि मोस्टली टाइम कंज्यूमिंग होती है, लोग ज्यादा राय देने में टाइम गुजार देते हैं, एंड दे डोंट कम टू द सोल्यूशन. देन इट्स लिमिटेड व्यू पॉइंट होते हैं. And last is democratic, which is going to the decision with the help of every people's suggestions or advices, and coming to this final conclusion with the help of their advices, their suggestions. Then it requires high commitment. Then it is authority which is undermined, long process, and no clear-cut decisions. So we have got four major styles, which is first one is autocratic, then is persuasive, then is participative, जिसमें आप लोगों को participate कराते हैं, then is democratic, which is consensus oriented, जिसमें लोगों की राय ली जाती है और लोगों की सुनी जाती है. There is why leaders take note, why they prepare log on the daily basis. daily log क्यों prepare करते हैं हमेशा वो कंप्यूटर के ऊपर, शाम को अपने ऑफिस से उठने से पहले और उठने से पहले वो हर एक चीज लिखते हैं कि सारा दिन हम लोगों ने क्या किया, कितने बजे सुबह आए, और साथ साथ नोट्स लिए जाते हैं. जब किसी हायर मैनेजमेंट के पास जाया जाता है तो एक कॉपी साथ लेके जाई जाती है और उसमें नोट्स लिखे जाते हैं कि इसमें इसका बेहतर फायदा ये है कि आपको चीजें याद रहती हैं, आपके पास चीजें रिटन होती हैं. Or it's a general advice that take advantage of the transition period. Get advice and counsel yourself. As a leader, as a manager, and as a human working for an organization, you need to take advice. You need to write those all advices. It is betterment for your own personal future. अगर आप leader की बात करते हैं, leader के personal future की, उसकी personal professional development के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है. Then it show empathy to the predecessor. जो पहले चले गए उनसे राय ली जाए, जो लीडर से पहले लीडर थे उनसे ये चीज पूछी जाए कि क्या आपने कैसा वक्त गुजारा, क्या कमियां पेशियां थी, किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है. एंड देन लर्न अबाउट लीडरशिप. इट्स अ जनरल एडवाइस दैट के फर्स्ट थिंग लीडर्स शुड टेक नोट्स, देन they take advantage of the transition period, then they get advice and counsel. It show empathy to predecessor, and then they learn about leadership. There are various challenges. अगर challenges के लिहाज से देखा जाए तो challenges में need knowledge quickly, because leader has to take the position, or leader has to act as a role oriented human in front of the employees. Then they establish new relationships with the people, then they come up with the expectations, and personal equilibrium रखना बहुत जरूरी है कि कोई ऐसा तो इतने दब भी ना चाहें कि लोग जो हैं ऊपर पैर रख लें, but you need to work as a normal or on a mediocre level. There are various traps. जब नए लीडर आते हैं, पोजीशन संभालते हैं, तो उसमें देखा गया है कि नए लीडर जो है वो इतनी आसानी से जल्दी क्विकली सीखते नहीं है, लर्निंग जो है वो क्विकली नहीं आती. उनको गौतज़न होना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको जाना पड़ता है, उनको खंगालने पड़ते हैं रिकॉर्ड्स, उनको फाइंड आउट करना पड़ता है कि किस जगह पे कौन सा डॉक्यूमेंट मौजूद है, और ज्यादा जल्दी लर्निंग नहीं आती. इसलिए कहा जाता है कि अपने प्रीडिसेसर से या अपने पिछले से ये पूछा जाए और जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन ली जाए उस पोजीशन के बारे में जहां पे लीडर काम करने आया है, कि वो आइसोलेट ना हो जाए. लीडर कई दफा ये होता है कि वो अपने एटीट्यूड की वजह से आइसोलेशन का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज एक
एक डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं और लीडर हिज और हर सेल्फ वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है. देन लीडर हैज टू कीप अप विद द एग्जिस्टिंग टीम. जो कि एग्जिस्टिंग टीम का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि उन्होंने काम किया हुआ होता है, उनको पता होता है कि एक कम्युनिटी को किस तरीके से उन्होंने कम्युनिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन की हुई है, या किस तरीके से उन्होंने एक पॉवर्टी एलिविएशन पे काम किया हुआ है, किस तरीके से इकोनॉमिक ट्रेंड्स को चेक किए, किस तरीके से इन्फ्लेशन रेट को चेक किया, एंड इक्वली किस तरीके से रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट किया है, किस तरीके से इन एक्टिविटीज को डिजाइन किया है. तो एग्जिस्टिंग टीम को सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको भी नहीं निकालना चाहिए. और इस चीज का जरूर जिक्र करना चाहिए, अगर लीडर पुराना चला गया और नए लीडर ने उसकी जगह संभाल ली है तो पुरानी टीम को प्रेज जरूर करना चाहिए. अगर आप नहीं करेंगे तो यू विल गो इनटू अ ट्रैप और एवरीबॉडी इज गोइंग टू थिंक अबाउट इट्स कि टीम लोग ये सोचेंगे कि ये जी ये भी बस अपनी मनमानी करने आए हैं और उनका कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं है. लेकिन फिर है जी टेकिंग ऑन टू मच, सारों का काम अपने सर पे ले लेना और गोइंग टू विद द माइक्रो मैनेजमेंट अप्रोच. हर एक की जाके आपने बीइंग एज अ लीडर चेक करना शुरू कर दिया कि वेदर कि उसने काम किया है या नहीं किया. जैसा स्टीव जॉब्स को लोग खिताब देते थे गुड स्टीव और बैड स्टीव के नाम से. तो you don't need to take on too much on your own shoulders. As a leader, you need to basically impart your ideas. You need to impart your advices. You need to impart your suggestions. And जब at the end वो employee जो है वो आपको काम करके लेकर आएगा, he or she shall inspire you with ingenuity, and they are going to tell you कि this is what we have found out. इसमें ये चीज डाल दीजिए तो आप बेहतर हैं. अच्छा, मोस्टली लीडर्स के अंदर ये चीज देखी गई है कि दे आर कैप्चर्ड बाय रॉन्ग पीपल. और ज्यादातर जो लोग हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पहचाने जो कि आपके सामने लोग हैं कि वो वाकईतन विलिंग हैं, वो कमिटेड हैं एक नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए भी नहीं. और देन इज सक्सेसर सिंड्रोम कि मैंने कामयाब होना है. इस तरह के अगर उसमें आप चले जाएंगे सिंड्रोम में तो भी आप एक सक्सेसिव लीडर नहीं बन सकते. देयर आर वेरियस कोर टास्क. अगर देखा जाए कोर टास्क में, देन वी हैव टू क्रिएट मोमेंटम in order to achieve the task as a leader. Then we need to master technologies of learning, visioning, and coalition building. How one technology can teach employees, how can vision can be achieved with the help of that technology. How can coalition बिल्डिंग जो मेजर्स हैं वो किस तरीके से लिए जाएं. और मैनेज वन सेल्फ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और ये देखा गया कि ये कोर टास्क होते हैं एक लीडर के कि वो अपनी पर्सनालिटी को इमोशनली काम रखते हैं और वो टेक्नोलॉजीज को जो है वो करना जानते हैं. देन इज टू क्रिएट मोमेंटम. अब in order to create a momentum as a leader, learn and know about organization, which is most important approach of one leader. And और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर जो अर्ली विन्स हैं, जो पहले कामयाबियां हो चुकी हैं, अचीवमेंट्स हो चुकी हैं, उनको सिक्योर किया जाए. फर्स्ट सेट शॉर्ट टर्म गोल्स जो अचीव हुए हैं उनको सिक्योर किया जाए. देन व्हेन अचीव मेक अ बिग डील. जब आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं तो एक बड़ी डील पे जाना चाहिए. एंड शुड फिट फॉर अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी. It is very important to secure early wins so that it should tell you कि आपकी next strategy क्या है, आपने next अपना step क्या लेना है और आपके पुराने क्या objectives achieve हो चुके हैं. जो भी objectives हैं उनको highlight करें और उनको tick mark करना शुरू कर दें. और जो आने वाले objectives हैं तो उनके बारे में भी ये अंदाजा लगाएं कि क्या आपकी achievements थी और अब क्या achieve करने चाह रहे हैं. Then leader work as a change agent. अगर आप देखें इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम, एक एसपी साहब आए थे, एसपी तैमूरी, उन्होंने पूरे इस्लामाबाद पुलिस के निज़ाम को चेंज किया. एज ए लीडर वन ऑल्सो एक्ट एज ए चेंज एजेंट. पहले उन्होंने जो है अनफ्रीज किया, उसके बाद रीफ्रीज किया, फिर वो अगर देखा जाए तो चेंज को इंप्लीमेंट किया, फिर दोबारा रीफ्रीज किया. और उसके अंदर ये देखा गया कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में आहिस्ता आहिस्ता करके वो चेंजेस लेकर आए और पूरा इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम ही बदल गया. अब इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने अब नई प्रमोशनल जो अप्रोच ली है वो भी उसी एक फेज का हिस्सा है, बिकॉज दे नो दैट कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए, हमने अपने डिपार्टमेंट को चेंज कर लिया, हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को नए सिरे से रिफाइन किया, हमने अपने सारे प्रोसीजर्स लॉज को देखा. और साथ साथ ये भी चीज देखी गई है कि किस तरीके से वो अवाम उन्नास के अंदर प्रमोशन लेकर आ रहे हैं कि किस तरीके से वो एक सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं इस्लामाबाद की रोड्स पे और लोग उनसे सीख सकते हैं कि किस तरीके से ड्राइविंग पैरामीटर्स को फॉलो करना है और वो कौन कौन सी चीजें जिनको अवॉइड करना है. सो लीडर विल in order to create a momentum, leader has to come up with a change और वो चेंज लाना एक पॉजिटिवली बहुत जरूरी है. Vision of how the organization will look.
build political base to support change, modify cultures to fit vision, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमने देखी कि विजन को अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप मोमेंटम की बात आगे करते चलें तो बिल्ड क्रेडिबिलिटी इज लीडर्स अप्रोच, और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिमांडिंग बट कैन बी सेटिस्फाइड. डिमांड सारी नोट करनी चाहिए और सेटिस्फेक्शन लेवल्स भी चेक करने चाहिए. accessible but not too familiar in order to build credibility, focused but flexible, active, can make tough calls but humane. Then is mastering technologies. They should learn from internal and external sources what technologies are available in the market और उसको किस तरीके से लेके चलना है in order to have a vision, accomplish vision. किस तरीके से विजन को साथ लेके चलना है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी को डेवलप करना है. पुश वर्सेस पुल्स क्या टूल होंगे, किधर से काम निकलवाना है, किधर ज्यादा जोर देना है, किधर कम जोर देना है. मास्टरिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज व्हाट बिहेवियर्स विच आर रिक्वायर्ड. कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जो पॉजिटिव बिहेवियर्स चाहिए. देन कम्युनिकेट द विजन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने विजन को बना तो देते हैं लेकिन वो डाउन टू द लाइन कम्युनिकेट नहीं करते. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट द विजन एंड इन सिंपल टेक्स्ट. बेस्ट चैनल है कि वो सिंपल जबान में. गुड मैनेजमेंट इज सिंपल मैनेजमेंट. क्लियर मीनिंग होना चाहिए. डू इट योरसेल्फ कि एज अ लीडर आपको खुद बनाना चाहिए क्या विजन है ऑर्गेनाइजेशन का. देन इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज में देखा जाए तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है हाउ कोएलिशन शुड बी बिल्ड इन नॉन प्रॉफिट सेक्टर. डोंट इग्नोर पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स को हमेशा पॉजिटिवली लेके देखें, पॉजिटिवली लेके चलें और उसको आप जो है अपने पॉजिटिव आइडियाज के साथ एक नेगेटिव पॉलिटिक्स को आप ओवरकम कर सकते हैं. और नॉन प्रॉफिट सेक्टर की खास बात है कि नॉन प्रॉफिट सेक्टर के अंदर इट इज नॉट अबाउट ओनली वन सेल्फ, इट इज अबाउट पीपल. इट्स ऑल अबाउट फिलैंथ्रोपी. लाइक आई हैव टोल्ड यू कि चैरिटी से हट के फिलैंथ्रोपी की बात है. पूरी दुनिया पाकिस्तान को बनाने की बात की जा रही है, कंट्री को बनाने की बात की जा रही है. सो इट इज ऑल अबाउट फिलैंथ्रोपी. एक लार्ज लेवल पे हेल्प देनी चाहिए टूवर्ड्स people. So politics is there, but you need to go with the optimistic attitude. You need to go with the positive attitude. Technical change not enough. एक technical change करने से भी coalition जो है वो नहीं build होती. Political management is not same as being political. And it's important, जैसे कि मैंने बताया कि managing oneself. Be self-aware. You should know what capabilities you possess as a leader, what skills you have as a leader. Then define your leadership style. Either it's persuasive, either it's democratic, either it's autocratic, either it's consultative, either it's involvement oriented. Then get advice and counsel yourself. Advice is from expert to leader. Counsel is inside. अब advice आपको छोटा बंदा भी दे सकता है, advice आपको बड़ा बंदा भी दे सकता है. Always welcome those all advices. What sort of help you require as a leader? Technical help is required, political help is required, personal help is required. As far as advisor traits is concerned, who is going to advise you? He or she should be competent. He or she should be trustworthy. And he or she should enhance your status. So last slide जो इस टॉपिक की लीडरशिप के टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज कॉन्फिडेंस ऑन लीडर. अगर आप देखें इस तस्वीर के ऊपर, इसमें जब फ्लड आया था 4 सदा में और सराउंडिंग्स में, और जैसा पाकिस्तान को फ्लड ने हिट किया अभी रिसेंटली, तो उसमें ये तस्वीर ली गई. और आप देखें तो ये दोनों बच्चे जो हैं इनके चेहरे पे कितनी इत्मीनान है, कितना सुकून है. दे आर सेटिस्फाइड. और माँ जो है वो उसको पानी के अंदर से उन दोनों बच्चों को निकाल रही है, लेके जा रही है. तो what sort of confidence these kids have on the mother, and equally mother की एक destination है कि उसने ये चीज़ अचीव करनी है और पानी इसके घर को क्रॉस कर चुका है. तो ये कॉन्फिडेंस आपने अवाम के अंदर डालना है, नॉन प्रॉफिट सेक्टर के अंदर ये चीज़ डालनी है और यही कॉन्फिडेंस लेके चलना है. अब सेकंड जो इस लेक्चर का पार्ट है दैट इज इंटरनल एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, इफेक्टिव निगोसिएशन स्किल्स. और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो कंटेंट्स हैं, उसमें हम लोग निगोसिएशन के कंपोनेंट्स को देख रहे हैं. निगोसिएशन इटसेल्फ, व्हाट इज इट, फीचर्स क्या है निगोसिएशन के, व्हाई निगोसिएशन, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ निगोसिएशन, क्या आर्बिट्रेटर की क्यों जरूरत पड़ती है, आर्बिट्रेशन एक्ट 1969 का क्यों इंप्लीमेंट होता है, क्या वजूहात है कि निगोसिएशन की, क्या कन्फ्लिक्ट्स क्यों अरेंज होते हैं, और कन्फ्लिक्ट्स अगर अराइज होते हैं तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है. तो निगोशिएशन इज द बेस्ट एस्पेक्ट. वेयर डू वी यूज दिस स्किल, किस तरह अप्लाई करना है.
क्या फेजेस होंगे निगोशिएशन के, बार्गेनिंग जोन मॉडल क्या होगा आपका, इश्यूज इन निगोशिएशन जो है वो क्या होंगे, निगोशिएशन बिहेवियर कैसा होगा, किस तरीके से आप इफेक्टिव निगोशिएशन को अचीव कर सकते हैं, निगोशिएशन की स्ट्रेटजीज और टिप्स क्या होंगे। अगर आप कंपोनेंट्स ऑफ निगोशिएशन की बात करें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एटीट्यूड, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं ग्रीन बंदे के ऊपर, एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव। देन इज बिहेवियर, देन आर नीड्स, फिर इंटरेस्ट, देन मैनेजमेंट। अगर ये बायर के सर्कल में आप देखें तो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, नीड्स है, इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट है और लिमिटेड वेरिएशन। और अगर आप अंदर देखिए इसके तो इश्यूज भी हैं, बायर आपको नजर आ रहे हैं, डिफरेंसेस भी नजर आ रहे हैं, लिमिटेड वेरिएशन भी नजर आ रहा है और प्रोसेस भी नजर आ रहा है। और अगर आप देखें इसमें कंपोनेंट्स में डिस्कशन है, सेटलमेंट है, गिव एंड टास्क है एंड प्रेफरेंसेस हैं और अरेंजमेंट है। सो निगोशिएशन के ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि निगोशिएशन उस वक्त तक होती है जब आपके पास बिहेवियर हो, एटीट्यूड हो, मैनेजमेंट स्टाइल आपका सही हो, इंटरेस्ट हो आपका कि आप निगोशिएट करें। और जरूरी नहीं कि कंफ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए या खत्म करने के लिए निगोशिएशन होगी, आप किसी और चीज के लिए भी निगोशिएशन कर सकते हैं। आप डोनर से जैसे फंडिंग ले रहे हैं तो भी आप निगोशिएशन एस्पेक्ट्स को सामने रख सकते हैं और उसके अंदर आप डिस्कशन जिस फ्रेमवर्क पे कर रहे हैं, जिस मोटे पे कर रहे हैं, आपकी किन किन पॉइंट्स पे आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है जो कि आपने डोनर को एक्सप्लेन करने हैं, उसकी क्या प्रेफरेंसेस है और उसको किस तरीके से अरेंज किया जाए, उनकी क्या डिफरेंसेस हैं उनको खत्म किया जाए और प्रोसेस के अंदर लेके लाया जाए और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए। तो सो कंपोनेंट्स ऑफ नेगोशिएशन आपके सामने, जिसमें एटीट्यूड है, बिहेवियर है, डिफरेंसेस है, नीड्स है, इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट है और लिमिटेशन, जो लिमिटेड वेरिएशन है जो कि बायर की साइड पे। और अगर अंदर देखें आप तो डिस्कशन है, सेटलमेंट है, गिव एंड टास्क है, प्रेफरेंसेस है और अरेंजमेंट है। अगर निगोशिएशन की बाय डेफिनेशन जाए जाए, द प्रोसेस टू अराइव एट एन अरेंजमेंट और एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट पार्टीज ईच विद देयर ओन इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। हर बंदे की अपनी इंटरेस्ट है, हर बंदे के अपने प्रेफरेंसेस हैं, हर एक की अपनी प्रायोरिटीज हैं एंड इन ऑर्डर टू कम अप विद द विन विन सिचुएशन इज द निगोशिएशन ऑब्जेक्टिव। और इसमें ये चीज देखा गया है कि दोनों पार्टीज के जो कंसेंट हैं या इंटरेस्ट हैं या प्रेफरेंसेस हैं उनको सामने रखा जाए और उसमें एक जो दोनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन है उसको क्रिएट किया जाए। द प्रोसेस वी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स व्हेन समवन एल्स कंट्रोल्स व्हाट वी वांट। सो इट्स अगेन ये सेकंड डेफिनेशन है। और थर्ड इज द एक्ट ऑफ डिस्कसिंग एन इशू बिटवीन टू और मोर पार्टीज with competing interest with an aim of coming to an agreement. So मेन मकसद क्या है? एग्रीमेंट लेकर आना है और दो पार्टीज के इंटरेस्ट को भी आपने सामने रखना है। अगर आगे चलें तो प्रोसीजर टू अचीव एन एंड through informal and formal steps of resolving the differences. If there is a difference of opinion, अगर दो एम्प्लॉइज हैं या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज है और उनमें difference of opinion है, differences आ गए हैं, तो किस तरीके से उनको मिनिमाइज करना चाहिए, कोई इनफॉर्मल स्टेप्स, कोई फॉर्मल स्टेप्स लेने चाहिए। यहां पे आपके सामने एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है विच शोज देयर इज अ ह्यूमन माइंड की अपनी हर एक की परसेप्शन होती है, उस परसेप्शन की बेस पे इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल सोशल नीड्स का भी इफेक्ट होता है। फिर उसी लिहाज से शेयरिंग एक्सचेंजिंग होती है आइडियाज की, इंटरेस्ट की। और अगर वो एरो अगर नीचे देखें तो वो प्रोसेस और उसके इन्फ्लुएंस पे जा रही है, डिफरेंस इन ओपिनियन की तरफ जा रही है और वो लीड कर रहा है टूवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट की सोल्यूशन की तरफ, यस या नो। सो वी हैव गॉट चेंजेस इन माइंड, चेंजिंग माइंड का हमने बिहेवियर देखा एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के जरिए कि किस तरीके से ह्यूमन माइंड जो है वो चेंज हुआ, कौन कौन सी परसेप्शन, आइदर उसने परसेप्शन पॉजिटिव रखी, आइदर इट्स नेगेटिव परसेप्शन, क्या एक्सपीरियंस था, उसकी बेस पे इफेक्ट क्या था पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल नीड्स का, किस तरीके से इंटरेस्ट और आइडियाज को शेयर किया गया, डिफरेंसेस इन ओपिनियन को किस तरह देखा गया, एंड इट लीड्स टूवर्ड्स व्हाट कॉन्फ्लिक्ट सोल्यूशन, आइदर सोल्यूशन हुआ या कोई और कंडीशन जनरेट हो गई। तो इट इज चेंजिंग माइंड जो है अप्रोच। और ये निगोशिएशन का एक प्रोसेस है। आप पहले परसीव करेंगे, परसीव करने के बाद जो आपके पास स्पिरिचुअल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, पॉलिटिकल आपके पास फैक्टर्स हैं, उनको उनका इफेक्ट चेक करेंगे। उसके बाद नॉलेज उसको शेयर किया जाएगा, इंटरेस्ट को, आइडियाज को, और एक प्रोसेस के अंदर ढाला जाएगा। उसके बाद डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस देखे जाएंगे एंड इट कैन लीड टूवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट, आइदर यस और नो सोल्यूशन। सो वी हैव गॉट अ नेगोशिएशन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क।
और अगर आप इसमें देखें कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंस के लिहाज से, जिसमें चेंजिंग माइंड की सेकंड अप्रोच है, तो देयर आर 3 मेजर स्टेजेस. वन इज प्री निगोशिएशन, अदर देन निगोशिएशन, देन पोस्ट निगोशिएशन. निगोशिएशन से पहले, निगोशिएशन के दरमियान और निगोशिएशन के बाद. अगर आप प्री निगोशिएशन स्टेज में देखें तो देयर इज अ प्रेपरेशन. आप प्रिपेयर हो रहे होते हैं किस चीज के बारे में? निगोशिएशन प्रोसेस के बारे में. और उसमें प्लानिंग है, ऑब्जेक्टिव है, और लैंग्वेज आपकी क्या होगी, इशू क्या है, जजमेंट किस तरह दी जाएगी, बोथ पार्टीज के इंटरेस्ट क्या हैं, इनको सामने रखा जाएगा. प्री निगोशिएशन विच इज अ प्रेपरेशन स्टेज. उसके बाद जो सेकंड स्टेज है दैट इज डिस्कशन स्टेज, और उसमें आप एक फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है और उसमें बात करते हैं और एक एजेंडा के बारे में डिसाइड करते हैं, एक इंटरेस्ट को शेयर किया जाता है और उसमें रैपो बिल्डिंग की जाती है, एम्पैथी होती है, सिंपैथी होती है, ट्रस्ट होता है और कम्युनिकेशन होती है. जब ये सेकंड स्टेज क्रॉस होती है तो देन इज निगोशिएशन स्टेज विच इज प्रोवाइडिंग, गिविंग ऑप्शंस और प्रपोजल्स टू द टू पार्टीज. This is our proposal, this is our options, and we can solve this issue or this particular problem, or we can satisfy both parties' interest with the help of this proposal. और वो negotiation के दौरान है और उसमें भी पॉजिटिव रहना है और कंसंट्रेट करना है. एंड पॉजिटिव रहना निगोशिएशन की मीटिंग के दौरान या निगोशिएशन करते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड फोर्थ वन इज बार्गेनिंग, एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट दोनों पार्टीज के, डील स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट को यहां पे आप मिनिमाइज कर सकते हैं बार्गेनिंग के वक्त. एंड देन इज एग्रीमेंट और सेटलमेंट जो कि पोस्ट निगोशिएशन है और उसमें दोनों पार्टीज का कॉम्प्रोमाइज यानी विन विन सिचुएशन का होना जरूरी है. और एंड इज एवेल्युएशन विच इज फॉलो अप और आउटकम को चेक करना, उसमें सेटिस्फेक्शन और फ्यूचर प्लान को देखना. अगर आप देखें तो एरो जो है कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंस प्रॉब्लम्स की तरफ से क्या फेलियर भी हो सकता है, सक्सेस भी हो सकती है. और अगर आप इस डायग्राम की खास चीज चेक करें तो इसमें प्री निगोशिएशन से लेके पोस्ट निगोशिएशन तक क्या क्या डिसीजन लेने हैं नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स ने, वो उस चीज का जिक्र किया जा रहा है. जिससे प्री निगोशिएशन में प्रेपरेशन की बात की जा रही है और डिस्कशन की बात की जा रही है. देन थोड़ा सा आगे चलते हैं निगोशिएशन में तो प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन आ जाता है जिसमें प्रपोजल देना होता है. देन बार्गेनिंग इज देयर, देन सेटलमेंट इज देयर, एंड एट द एंड इट्स एवेल्युएशन वेदर दे हैव अचीव्ड टू द सक्सेस और वेदर दे आर जस्ट ऑन वेटिंग ऑन द फेलियर पॉइंट. अगर आप फीचर्स ऑफ निगोशिएशन को देखें तो देयर आर टू पार्टीज मेजरली, दे हैव गॉट प्री डिटरमिन्ड गोल्स और इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन, और उसमें दे ऑलवेज एक्सपेक्ट एन आउटकम. They always resolve and come with the consensus. Parties willing to modify their positions, and there are features of negotiation that parties should understand their purpose of negotiation, why they are negotiating with each other, क्या वजूहात हैं. So ये वो features हैं, वो characteristics हैं जो कि negotiation के दौरान होने चाहिए. कौन कौन से स्किल इस्तेमाल करने निगोशिएशन के लिए? फर्स्ट थिंग, एवरीथिंग इज निगोशिएटेड. पहली चीज ये चीज दिमाग में रख लें कि हर चीज निगोशिएट की जा सकती है. देन इज फैमिली एंड पर्सनल. अगर आप देखें वेयर शुड वी गो फॉर डिनर, we can finalize the negotiation on it, we can come up with the solution. Can I borrow the car? Yes, we can come up with a solution. This is family and personal sort of a matters or issues which we do on a daily basis, and we come up with the negotiation. Then is academic research. Can they fund my research? Or HEC is going to fund my research? Or this JICA is going to fund my research? Either donors are going to provide me the funding for in order to implement this project. So academic research is of that importance. Or इसमें publish, can this journal is going to publish my paper? So this is again academic research और इसमें academic negotiation. In NGOs, community interaction. क्या interaction है, क्या नहीं, क्या donor मिलेगा? Acquire and implement a project in the society. किस तरीके से करेंगे? सो इस पे भी निगोशिएशन हो सकती है. इस पे भी प्लान्स पे जो है दो पार्टीज जो है डिफरेंट इंटरेस्ट पे आ सकती हैं और उसमें आपने प्री निगोशिएशन, निगोशिएशन और पोस्ट निगोशिएशन जो है वो सारी की सारी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जिसमें लास्ट में मैंने डिस्कस किया उसको आपने अप्लाई करना है. व्हाई डू वी निगोशिएट? क्या वजूहात है? फर्स्ट थिंग, टू रीच एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज. देन टू बीट द ऑपोजिशन. नंबर 3, टू कॉम्प्रोमाइज. Number 4, to settle an argument. And number 5, to make a point clear to the rest of the parties. So we have got five major causes why there is a need of negotiation. First one, to reach an agreement. Second, to beat the opposition. Third, to compromise. Fourth, to settle an argument. And fifth, to make a point clear to the other party.
एंड कम अप विद द सोल्यूशन, कम अप विद द विन विन सिचुएशन। अगर आप हक देते हैं किसी को तो आप रियायत भी बख्श दें, अगर तो उससे ये होगा कि सोल्यूशन पॉजिटिव नेचर का सामने आएगा और उसमें दोनों पार्टीज का जो है वो कंसेंसस होना जरूरी है, उसका फॉलो अप लेना जरूरी। देन देयर आर वेरियस फेजेस ऑफ नेगोशिएशन। There are basically two phases of negotiation. First one is a process and second is approaches, techniques / skills. Process के अंदर कैसे negotiation करनी है और कौन कौन सी approaches को, techniques को और skills का इस्तेमाल करना है negotiation के लिए। प्रोसेस को देखा जाए तो उसमें प्री निगोशिएशन स्टेज है, निगोशिएशन है, पोस्ट निगोशिएशन स्टेज है। प्री निगोशिएशन में आप प्लान करें, आप प्रिपेयर करें, आप रिपोर्ट्स को, रैपो को प्रिपेयर करें और ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को प्रिपेयर करें। प्री निगोशिएशन में आपने जितनी भी निगोशिएशन करनी है वो प्रोसेस से रिलेटेड इन 3 एलिमेंट्स पे करनी है। पहली चीज जब आप प्लान कर रहे होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डिजाइन कर रहे होंगे, देन यू एस्टैब्लिश अ रैपो, then you come up with the objectives and goals, that this is our written objectives. Then is negotiation, which is discussion, proposals, bargaining and compromise. During negotiation you discuss about, propose ideas, bargain and compromise. And post negotiation you need to review whether the negotiation process in which we were, we have come with a discussion, we came up with a discussion point on which our focus or our agenda was, either our proposal is accepted, third either we have bargained between the parties, and fourth is we come up with the win-win situation. So this is post negotiation in which I need to, as a leader, I need to find out my reviews are right or wrong, my evaluation is positive or negative, either people have done exceptionally good, either they have understood the agendas or points of negotiation or not. प्री निगोशिएशन की एग्जांपल देखें तो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के अंदर बहुत से आइडियाज को शामिल किया जाए, रैपो बिल्डिंग में एस्टैब्लिश किए जाए रैपो और लोगों से मिला जाए, और ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स के क्या पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं, क्या रेवोल्यूशनरी हैं, क्या एवोल्यूशनरी हैं, क्या वो हेल्थी हैं फॉर द सिस्टम, नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं, क्या वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या वो किसी और मोटिव के लिए। तो प्री निगोशिएशन में 3 इंपॉर्टेंट चीजें, फर्स्ट वन इज प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, नंबर 2 इज एस्टैब्लिशिंग रैपो एंड नंबर 3 इज ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज्यादा आइडियाज को देखा जा रहा है। रैपो में एक एम्प्लॉय दूसरे से मिल रहा है, गपशप कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किस तरीके से निगोशिएशन की तरफ जाएं। देन इज ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि इराक में है और वो जो है वो कुछ पढ़ रहा है और वो कोई डिस्ट्रक्टिव पर्पस की तरफ, डिस्ट्रक्टिव गोल की तरफ, ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहा है। अगर निगोशिएशन की बात की जाए, we need to discuss, we need to come up with the solution, then we need to provide proposals कि ये options हैं हमारे पास, then we need to bargain, compromise, win-win situation and agreement। अगर आप देखें इधर bargain और compromise की एग्जांपल देखें तो ये 2 अदद बैल हैं जो अपने आप को खींच रहे हैं दोनों तरफ और खींच नहीं पा रहे हैं, और इस तस्वीर के अंदर देखें फिर आखिरकार दोनों बैठ गए हैं और दोनों एक तरफ और दूसरी तरफ जाना शुरू हो गए, तो इट्स अ कॉम्प्रोमाइज। और देन इज एग्रीमेंट बिटवीन बोथ पार्टीज। निगोशिएशन का पर्पस ही ये है। प्री निगोशिएशन में हमने देखा, अब निगोशिएशन में हम देख रहे हैं कि इसके अंदर डिस्कशन है, प्रपोजल्स हैं, बार्गेन है एंड एग्रीमेंट है। पोस्ट निगोशिएशन में देखें तो रिव्यू है, वेदर जो है हर चीज ओके है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एयरशिप कैरियर है और इसके अंदर ये चीज नोट की जा रही है कि एवरीथिंग इज राइट। जब हर चीज सही होगी तब पायलट जो है वो फ्लाई करेगा और उसको ऑर्डर्स मिलेंगे तब वो फ्लाई करेगा। तो रिव्यू में आपने ये चीज देखनी है कि क्वार्टरली रिव्यू है, वीकली रिव्यू है, आपके कौन कौन से गेट वाइज रिव्यू हैं, आपके प्रोजेक्ट्स के रिव्यूज हैं, आपके पोर्टफोलियो के रिव्यूज हैं, या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी रिव्यू है कि नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वाकई कम्युनिटी को वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। एंड देन इज एवेल्युएशन विच इज द पार्ट ऑफ पोस्ट निगोशिएशन। पोस्ट निगोशिएशन में हमने रिव्यू को देखा, देन इज एवेल्युएट, निगोशिएट एंड इंप्रूव स्किल्स में, जिसमें रीजंस फॉर फेलियर क्या थी, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड थे फॉर सक्सेस, कौन कौन सी एक्टिविटीज को चेकलिस्ट किया गया, लिस्ट डाउन किया गया, और साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या थी। रीचिंग अ लाइफ बैलेंस इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ वी चेंज व्हाट अदर्स थिंक, फील, बिलीव एंड डू। इसमें पहली चीज है जो आपके सामने डिस्कस हुई कि किस तरीके से चेंज किया जाएगा, वो प्रोसेस की बात की गई, और अब अप्रोचेस और टेक्निक्स और स्किल्स की बात की जा रही है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए,
You need to develop a win-win philosophy. You need to come up with a positive culture. You need to come up with a diplomatic language in an organization. And handling problems is the final objective. These are the tools in the process of negotiation. First one is body language. Number two is coming up with a win-win philosophy. Then is third is culture. And fourth is diplomatic language. And last but not the least, which is handling problems. So these are the tools in the process of communication. इसके साथ साथ कुछ और tools जो देखे जाते हैं, जिसमें आपका role playing, psychodrama, conferences, brainstorming sessions, homework, language, controlling negotiation conflict by controlling the impression is important. And उसमें अगर आप impression को control करने की बात करते हैं तो आप courage होनी चाहिए कि आप तब्दीली लेकर आएं. अगर bargaining zone model को देखा जाए तो आपका योर इनिशियल पॉइंट जो था उसको लेके चला जाए तो योर टारगेट पॉइंट की तरफ तो रेजिस्टेंस पॉइंट भी आएगा और यू नीड टू कम अप विद अ बैलेंस इन बार्गेनिंग जोन मॉडल. उसमें आपने ओपोनेंट के भी पॉइंट्स देखने, अपने भी पॉइंट्स देखने और दोनों का सामने रख के आपने सोल्यूशन की तरफ आना है. तो अगर आप देखें ग्रीन में एरिया ऑफ पोटेंशियल एग्रीमेंट है और एरिया ऑफ पोटेंशियल एग्रीमेंट जो है वो हर दोनों पार्टीज के पॉइंट्स के दरमियान में फॉलो अप करता है और इसमें अपोनेंट के रेजिस्टेंस पॉइंट भी हैं, अपोनेंट्स के टारगेट पॉइंट भी हैं, अपोनेंट्स के इनिशियल पॉइंट्स भी मौजूद हैं. तो बार्गेनिंग जोन मॉडल जो है वो दो पार्टीज के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको पोटेंशियल एग्रीमेंट के जरिए सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं. तो निगोसिएशन बार्गेनिंग जोन मॉडल. और निगोसिएशन बिहेवियर की बात की जाए तो गैवन कैनेडी डिस्क्राइब तीन तरह के बिहेवियर उसने डिस्क्राइब किए थे जिसमें वी कैन डिस्प्ले एन एनकाउंटर व्हेन इन नेगोशिएशन सिचुएशन. फर्स्ट वन इज रेड बिहेवियर, देन इज ब्लू बिहेवियर एंड थर्ड वन इज ग्रीन बिहेवियर. अब रेड बिहेवियर क्या है? इसमें एम्प्लॉयज जो है मैनिपुलेट करते हैं, एग्रेसिव होते हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, ऑलवेज सीकिंग द बेस्ट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, टेकिंग करते हैं बहुत ज्यादा इधर उधर चीजें, नो कंसर्न फॉर पर्सन यू आर नेगोशिएशन विद, तो रेड बिहेवियर भी होता है. देन देयर इज अ ब्लू बिहेवियर विच इज विन विन अप्रोच, कॉपरेशन, ट्रस्टिंग, रिलेशनल एंड गिविंग सॉर्ट ऑफ अ जो ब्लू अप्रोच है. देन इज ग्रीन बिहेवियर, गिव मी सम ऑफ व्हाट आई वांट, थोड़ा सा रेड भी ले लिया और थोड़ा सा एंड आई विल गिव यू व्हाट यू वांट. गुड इंटेंशंस होती हैं, टू वे कम्युनिकेशन है. ग्रीन बिहेवियर इनसाइड्स ग्रीन बिहेवियर, ओपन एंड पीपल नो वेयर दे स्टैंड. सो देयर इज अ रेड बिहेवियर विच इज अग्रेसिव, हॉस्टाइल. देयर इज अ ब्लू बिहेवियर विच इज इन बिटवीन ग्रीन एंड रेड. एंड देन देयर इज अ लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज ग्रीन बिहेवियर, जिसमें आपने कुछ अपना हिस्सा रखना है, कुछ दूसरे का हिस्सा रखना है और दो टू वे कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होंगे. और यू शुड अंडरस्टैंड कि हु इज द पर्सन सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑन द टेबल. सो ग्रीन बिहेवियर इनसाइड्स ग्रीन बिहेवियर. There are certain negotiation tips that you do not underestimate your power. Do not assume that the other party knows your weaknesses. It is a mistake to assume you know what the other party wants. Never accept the first offer. Do not fear to negotiate. अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखा जाए तो एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज में जो है बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन कंस्टिट्यूट 60% और मोर ऑफ व्हाट वी आर कम्युनिकेटिंग. बैरी की 2004 की ये कोटेशन, ये वो है कोट है कि 60% जो है टाइम जो है वो इंसान की बॉडी लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेट कर रही होती है. और उसमें अगर आप देखें देयर आर वेरियस सिंबल्स भी जो कि बताते हैं, वेरियस पिक्चर्स भी बताते हैं. कोई एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज होगी तो उसमें फिजिकल थ्रेट शो किया जा रहा होगा. कोई अटेंटिव बॉडी लैंग्वेज होगी तो उसमें रियल इंटरेस्ट शो किया जा रहा होगा. कोई बोल्ड बॉडी लैंग्वेज होगी वो इंटरेस्ट शो नहीं करेगी. कोई डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज होगी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होगी. कोई डिसेप्टिव बॉडी लैंग्वेज होगी वो सीक टू कवर अप लाइंग और अदर डिसेप्शन. कोई डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज होगी तो प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम अदर पार्टी. फिर देयर इज अ डोमिनेंट बॉडी लैंग्वेज जिसमें डोमिनेटिंग अदर्स होता है. फिर इस इमोशनल बॉडी लैंग्वेज विच इज आइडेंटिफाइंग फीलिंग्स. देन इज रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज जिसमें कंफर्टेबल एंड अनस्ट्रेस्ड होते हैं. Then we have got a successful negotiator. उसके एटीट्यूड के बिहेवियर की कुछ एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं जिसमें one has to be sensitive, one has to compromise, one has to be sincere, reliable and committed. और अगर ये reliable और ये committed और sensitive होंगे तो वो अगर sensitive होंगे तो tolerance for conflict भी उनके अंदर होगी, patience and good listener भी होंगे and stress management भी वो कर सकते हैं. But if they are committed, उनमें in command, self and control होना चाहिए, ability to research होनी चाहिए, creative and highly motivated
मोटिवेटेड होने चाहिए, और आउटपुट किया है कि सेंसिटिव और कमिटेड होने से देयर रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, देयर ट्रस्ट इन सेल्व्स एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई बॉटम लाइन इश्यूज क्विकली. सो a successful negotiator and is to respect for others, to have a trust in self, and has the ability to identify bottom line issues quickly, और उनका solution जो है win-win situation के जरिए आता है. There are other skills which are required for negotiation, जैसे preparation and planning skills हैं, negotiation of the objects हैं, ability to think clearly and rapidly, ability to express, listening skills हैं, general problem solving, analytical skills हैं. Then there are certain other skills which are easy to understand, and we are going to shift ourselves. अगर आप देखें तो ये एक पिक्चर है जिसमें इस पिक्चर के अंदर दो पार्टीज हैं और इनका कॉन्फ्लिक्ट शो किया जा रहा है उस टहनी पे बैठने के लिए. हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि एक ही वक्त पे जब आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हो या किसी भी बात पे आप डिस्कस कर रहे हो, तो आप यू नीड टू कम अप विद अ विन-विन सिचुएशन. Then there is a negotiation strategy model by Kenneth Barron, और ये बताता है एक तरफ इंट्यूशन है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे इन्फ्लुएंस है. तो दो वेरिएबल्स हैं, इंट्यूशन एंड इन्फ्लुएंस, और दो डिग्रीज हैं. डिग्री एक जो है इंट्यूशन की मेजर करने के लिए है कि लो टू हाई, कि आप किस तरीके से लोगों को मॉडिफाई करेंगे उनके, और किस तरीके से उनकी एबिलिटीज को मॉडिफाई करेंगे, और अगर हम इन्फ्लुएंस की बात की जाए किस तरीके से आप लोगों पे इन्फ्लुएंस करेंगे. तो लो और लो जो दोनों चीजें होंगी, और इंट्यूशन भी लो होगा और इन्फ्लुएंस भी लो होगा, तो दैट इज कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन. अगर लो इंट्यूशन होगा और हाई लॉजिकली होगा तो दैट इज लॉजिकल सिचुएशन. इन्फ्लुएंस हाई होगा तो लॉजिकली होगा. अगर आपके इन्फ्लुएंस लो होगा और हाई आपका इंट्यूशन है तो दैट इज बार्गेनिंग. और अगर आपके इमोशंस हाई हैं, इन्फ्लुएंस भी हाई है और आपका इंट्यूशन भी हाई है, दैट इज इमोशन. सो दिस इज अ नेगोशिएशन स्ट्रेटजी मॉडल. यू नीड टू चेक whether you are on the compromise stage, you are on the logically oriented stage, you are on the bargaining stage, whether you are on the emotion stage. So this is intuition versus influence, कि किस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगले को और किस तरीके से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. There are various skills. Not every leader will be a good negotiator. One has to come up with the various skills, and one has to come up with the decisiveness, tact, integrity, enthusiasm, bearing, usefulness, courage, knowledge, loyalty, endurance. According to the article 5 key traits of the great leaders on entrepreneur.com, which I have written, leader has to come up with a vision, passion, decisiveness, team building, character building. And there are a total of 14 leadership traits according to the US Marine who can come up with the negotiation skills. Bear in the mind that every leader does not necessarily possess all 14 personality traits. There are other traits too. हर personality दूसरे से फर्क होती है. One has to judge, provide justice, dependability, initiative, and at the end we have got these references. I have taken these references and I have written them for your own perspective. और आज का जो लेक्चर था वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको हुई होगी, आई होप, कि जिसमें हम लोगों ने लीडरशिप के बारे में और निगोशिएशन स्किल्स के बारे में देखा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट दो एस्पेक्ट्स हैं, लीडरशिप एंड निगोशिएशन. और उसमें हमने वेरियस मॉडल्स को हमने विटनेस किया, हमने एक्सप्लोर किया, और हमने ये अंदाजा लगाया कि इस क्लास के अंदर कि किस तरीके से डिसीजन मेकिंग के लिए ये चीज जरूरी है. लीडर जरूरी है, मैनेजर्स का क्या काम होता है, लीडर्स का क्या काम होता है, और साथ साथ ये चीज देखी गई कि क्या किस तरीके से निगोशिएशन के एस्पेक्ट्स, निगोशिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्टिकुलरली एट्रीब्यूट्स चाहिए एक लीडर को एक अच्छा निगोशिएटर बनने के लिए. आई होप कि मेरा आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज.